Shekhar ji, thanks a lot. Ladies and gentlemen, it is a matter of great pleasure for me to address the India Leadership Forum of NASSCOM. I would have been happy to come there personally, but for want of time, I could not make it. But your technology has enabled me to reach to you, and credit goes to you. I have also received a number of questions from you. I will try to cover them in my talk itself. Let me congratulate NASSCOM on completing 25 years of its fruitful activities. The India Leadership Forum has been organized at a time when the whole country is thinking of the roadmap of speedy and all-round development of India. We are faced with demographic, fiscal, and technological challenges. However, I have always believed that these challenges can be converted into golden opportunities. We can, we should, and we will put the country on the road to faster and inclusive development. Information technology can be a great enabler in this process. I hope and wish that your deliberations will show us the way. Friends, we are one of the youngest nations in the world. Nearly 65% of our population is below the age of 35 years. Just imagine the energy and potential of this talent pool. It can write a new history for our nation. In fact, for the whole world, it can. We just need to empower our youth with skills so that they can ensure their own development and growth of India. NASSCOM can play a very big role in this process. Our IT industry and IT manpower have enhanced the image of the country in the world. Now, it is time that IT revolution take place in India. पहले कुछ घर में तो करें, कुछ घर से तो शुरुआत करें. NASSCOM, as the leader of the industry, should engage actively in this process. We have all the basics available. We have 85 crore mobile phones in the country. Almost 1/4 of the population is already connected with internet. However, people do not have the necessary applications or knowledge which can help in their day-to-day life. If you make it work in people's lives, the market size of your industry goes up automatically. और मैं आज जब NASSCOM के सारे मित्र इस बात पर थोड़ा सोचे कि भारत में इतना सारा पोटेंशियल है, आप इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ा बिजनेस हब, एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर अगर आप बना देते हैं, उसके लिए बारीकियों को पकड़ते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम पिछले
20 साल में जो ग्रो किया है उससे सैकड़ों गुना ज्यादा विद इन इंडिया रिक्वायरमेंट के अनुसार, मार्केट की आवश्यकता के अनुसार अगर हम पूरा अपना मॉडल चेंज करें, भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं कि हम इस चीजों में बहुत ताकत से पहुंच सकते हैं। टू स्टार्ट दिस प्रोसेस, training in the field of ICT is a major requirement. In Gujarat, we have launched a program called Electronic Manpower, Empower, for this purpose. You'll be happy to know that in the very first year, over 100,000 youth have registered. This includes the women and youth from rural areas. The government, the institutions, and IT industry will have to create stronger ties to bring the results on ground. Friends, I see the role of IT as a change agent. It empowers, it connects, it can bind isolated parts of a country. It can create harmony in society. It can join people with governments. It can convert schemes and programs. It can reduce the gap between demand and supply. It can bring us closer to precious knowledge. IT can help us monitor what is critical. भाइयों बहनों, कभी मैं सोचता हूं कि भारत की विकास यात्रा में अंग्रेजों के जमाने में रेलवे नेटवर्क ने कौन सा रोल प्ले किया था। जो रोल उस जमाने में 100 years ago रेलवे नेटवर्क ने भारत के जीवन में किया था, आज भी इंफॉर्मेशन हाईवे नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने में, हिंदुस्तान को गति देने में, हिंदुस्तान की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है। और इसलिए मैं बहुत आग्रहपूर्वक इस बात का अभिप्राय भी मैं रखता हूं और मैं विश्वास भी रखता हूं, और इसलिए मैंने एम्पावरमेंट के कितने एरियाज है जिसको बल दे रहा हूं। सो व्हाट इज लैकिंग इज द नेसेसरी स्किल एंड सिस्टम्स टू एम्पावर अस। I request NASSCOM to focus on this on its silver jubilee. After 8 years, India will be celebrating the diamond jubilee of its independence. 1947 को हम 75 साल होने जा रहे हैं 8 साल के बाद। By that time, we must be a different nation. और मैं मानता हूं हर हिंदुस्तान के दिमाग में भर जाना चाहिए कि भारत को जब आजादी को 75 साल हो, डायमंड जुबली हो, तब हमारा देश पूरी तरह बदला हुआ नजर आना चाहिए। और जब बदला हुआ नजर आएगा तो उसका मूल कारण होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी द ग्रोथ इंजन ऑफ दिस न्यू इंडिया। माय विजन इज दैट by that time, India should become digital India. We must be a knowledge-based society and economy. Our markets should become knowledge markets where every seller and purchaser knows everything. Our villages will be knowledge villages. Our workers will be knowledge workers. Our farmers will be knowledge farmers. Use of satellite technology can further enhance grassroots information and services. मैं एक छोटा उदाहरण दूं।
भारत इतनी विविधताओं से भरा देश है। हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी आर्ट है, अपना हैंडीक्राफ्ट है। हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के पास है। आज कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इन सभी 1000 से ज्यादा प्रकार की इस हमारी विधा को हम दुनिया के सामने रख सके। आईटी नेटवर्क में ताकत है। B2B इस सारे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अगर हम बना दें और हम तय करें कि हम हमारे हैंडीक्राफ्ट को, हमारी आर्ट को एक ग्लोबल पोजीशनिंग करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ आईटी हमारे गरीब से गरीब लोगों को हम कितनी रोजी रोटी दे सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं जब ये नॉलेज एरा की बात करता हूं तो मैं इस रूप में नॉलेज एरा का उपयोग करने की बात करता हूं। दैट इज वाई आई कीप सेइंग IT plus IT is equal to IT. Indian talent plus information technology is equal to India tomorrow. Thus, internally and globally, our IT sector can become the shining light of brand India. Friends, good governance has become a very heavy subject today. And lack of good governance, we know what type of problem we are facing. People do not know how to get the information and services. The road to grievance redressal is quite unknown. और मैं इस विश्वास का हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि उस व्यवस्था में ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम कितना स्ट्रांग है। और इसलिए हम सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्वोच्च स्थान तक पहुंचा सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। और वैसे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी, आपकी एक्टिविटी में आपने देखा होगा, वो कॉरपोरेट हाउस बहुत अच्छे चलते हैं जहां पर नीचे से ऊपर की तरफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन जाती है और ऊपर से नीचे की तरफ परफेक्ट गाइडेंस जाता है। नो डाइल्यूजन, नो डाइवर्जन, उसके कारण एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है। यही चीज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही उत्तम तरीके से हो सकती है। वी डू नॉट नो द रिलेशन बिटवीन आउटले, आउटपुट एंड आउटकम. We do not know how to track a child for his education or health. Unfortunately, we have leaders who, instead of bringing solutions, are further confusing the issues. भाइयों बहनों, मैं आज एक विषय और भी आपके साथ छेड़ना चाहता हूं जो इन ए वे डायरेक्टली आईटी रिलेटेड नहीं है. आप अपना सिल्वर जुबिली मना रहे हो. नेस्कॉम इस काम को कर रहा है. अब भारत सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है. कुछ परसेंटेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाने वाला है. क्या आप सब मिलकर के सीएसआर के तहत हिंदुस्तान का कोई एक प्रॉब्लम हाथ में ले, कोई भी प्रॉब्लम. मान लीजिए आप सोचते हैं कि भाई हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेशियो कम हो. आप मान लीजिए आपने ये लिया, ड्रॉप आउट रेशियो कम हो. आपकी सारी कंपनियां मिलकर के एक टास्क फोर्स बना करके सीएसआर के अंतर्गत हर स्कूल गोइंग बच्चों को ट्रैकिंग कैसे करना, इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करना, अगर 3 दिन वो बच्चा स्कूल नहीं आए तो इमीडिएट मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोऑर्डिनेशन कैसे हो. हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों के बच्चे अगर उसके ड्रॉप आउट में हम 5% 7% भी कमी ला लें और विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क, क्विक ट्रैकिंग सिस्टम, और ये आप कर सकते हैं.
आपके लिए उसके सॉफ्टवेयर इवॉल्व करना, उसको लगाना, उसको फॉलो करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, नेस्कॉम का सिल्वर जुबिली ईयर भी माना जाएगा, और जो बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा होगा वो आपका सबसे बड़ा क्लाइंट बनेगा। यानी एक प्रकार से मैं गुजराती आदमी हूं तो जरा बिजनेस की बात जल्दी समझता हूं, वो ये आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा। और इसलिए मैं आज नेस्कॉम के लोग जब सिल्वर जुबिली के समय पर ये इन बातों को बैठे हैं, आप तय कीजिए, और सब कंपनियां अलग अलग अपना CSR न करें, एक एजेंडा पकड़े, 2-3 साल का टाइम टेबल बनाएं, देश को उस क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सॉल्यूशन दे के रहेंगे। इस विश्वास से आज अगर आप जाते हैं, मैं दावे से कहता हूं, आप हिंदुस्तान को एक नई दिशा में ले जाने के लिए सच्चे अर्थ में चेंज एजेंट आप खुद बन जाएंगे। आई हैव ऑलवेज सेड दैट e-governance is the most easy, effective and economical governance. It is one of the most useful field of information technology. E-governance has the potential to become the greatest problem solver of the people. It brings about empowerment, equity, efficiency, and its economy. It has the ability to deliver the desired goal of minimum government and maximum governance. We have been talking of the digital divide. What does it mean? It is relevant only for seminars and conferences. To my mind, digital divide means that what a person can get through IT in a city is not available to the person in a remote villages. भाइयों बहनों, आज इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह की बहुत चर्चा होती है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ के नीचे जिन बारीकी से हर चीजों को वर्कआउट करना चाहिए वो हमारे देश में नहीं हो रहा है। जैसे इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर आप हिंदुस्तान के पिछड़े से पिछड़े इलाके को डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मॉडल भी इंक्लूसिव से शुरू करना पड़ता है। अगर रिमोट एरिया में रोड है, जिंदगी बदलना शुरू होती है। रिमोट एरिया में अच्छी स्कूल का काम हुआ है, जिंदगी बदलना शुरू होता है। रिमोट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, जीवन बदलना शुरू होता है। उसी प्रकार से आने वाले दिनों में इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। हम हिंदुस्तान के विकास में संतुलित विकास चाहते हैं तो देर नहीं होनी चाहिए, भले और रोड पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन देश में हम किसी भी हालत में डिजिटल डिवाइड को हो सके उतना जल्दी कम करेंगे। ये अगर हमारा टारगेट रहा तो हम विकास के फल, अब जैसे हम गुजरात में अनुभव करते हैं, रिमोट एरिया में अच्छे टीचर अगर नहीं मिलते हैं तो हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से दूर सुदूर जंगल में रहने वाले बच्चों को भी अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमने डिजिटल डिवाइड को कम किया तो हम वहां की शिक्षा को सुधार सकते हैं। और उस अर्थ में मैं कहता हूं कि हम सबकी साझी जिम्मेवारी, इट्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, वेदर आईटी प्रोफेशंस हो, वेदर आईटी कंपनीज हो या हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हो, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हिंदुस्तान में किसी भी हालत में डिजिटल डिवाइड को पनपने न दें। दो हिंदुस्तान अगर पैदा हो गए तो पहले से भी हम अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम नई समस्याओं को जन्म देंगे। और इसलिए हिंदुस्तान ऐसा नहीं हो सकता कि एक तो 100 की स्पीड से दौड़ रहा है
और बाकी लोग रिवर्स गियर में चल रहे हैं तो संकट कितना बड़ा गहरा हो सकता है। उसके अनेक सॉल्यूशन में एक ये केयर करने का विषय है कि देश में किसी भी हालत में डिजिटल डिवाइड को हम जितना कम करें, हमने तत्काल उस पर वर्कआउट करना चाहिए। फॉर दिस द सॉफ्टवेयर is as responsible as the hardware. We have marketed hardware a lot. From phones to laptops, we see strength in that, but real strength lies in a software utility. What are we doing about that? भाइयों बहनों, आप टीवी एडवर्टाइजमेंट देखिए, अखबारों की एडवर्टाइजमेंट देखिए, चारों तरफ हार्डवेयर का मार्केटिंग चल रहा है। सिर्फ हार्डवेयर मार्केटिंग करके हम बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के मोबाइल फोन लोगों के हाथ में तो पहुंचा देंगे। लोग भी बेचारे अपने आप को आधुनिक दुनिया से जुड़ा हुआ मानने के लिए मोबाइल फोन लेकर के घूमता रहेगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर से परिचित नहीं है, उसकी ताकत से परिचित नहीं है, तो उसके हाथ में अच्छे से अच्छा हथियार होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी में काम नहीं ला सकता है। और इसलिए हम सब कंपनियों का, सरकारों का हम दायित्व हैं कि हम लोगों को इस यूटिलिटी के संदर्भ में हम किस प्रकार से लोगों को एजुकेट करें, हम कैसे गाइड करें, हम उनको अपने दायरे में किस प्रकार से ज्यादा जोड़ें, और हम ये जितना ज्यादा करेंगे हम उसका फायदा। अब जैसे मेरे मन में विचार आता है, नेस्कॉम अपना सिल्वर जुबली मना रहा है, क्या हिंदुस्तान में आप हिंदुस्तान के सभी स्कूल कॉलेज में एक ऐसे कंपटीशन, एक डिबेट कंपटीशन, एक ऑनलाइन क्वेश्चंस कंपटीशन, एक बड़ा अभियान नहीं चला सकते क्या, जिसमें छोटे से बच्चा भी टेक्नोलॉजी के संबंध में वो क्या चाहता है, क्या हो रहा है, वो क्या करता है, हो सकता है क्या हम बच्चों का कंपटीशन करें कि चलिए भाई तुम सर्च में किस इंजन पे जाओगे, कौन सी चीज को कितनी तेजी से तुम सर्च करके ले आते हो। आप देखिए एक बहुत बड़े स्केल पर, और मैं मानता हूं स्टूडेंट कम्युनिटी को हम सबसे पहले टारगेट करें, वो 5 साल के अंदर दुनिया को बदलने की एक बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है। हम अपने स्कूल सेंटर्स पर नेस्कॉम के माध्यम से एक बहुत बड़ी मात्रा में हम कंपटीशन क्यों न करें। अगर हम इस बात को करते हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के छोटे से छोटे व्यक्ति को सिर्फ हार्डवेयर पर उसका जो मोह बन रहा है, हर नए इंस्ट्रूमेंट को लेने के लिए वो प्रयास करता है, हर नए गैजेट पर उसका आकर्षण होता है, उसके बजाय हर नई यूटिलिटी की तरफ उसका आकर्षण बने, ये हमारा फोकस चेंज करने की मुझे आवश्यकता लगती है। Why can't the parents get information of their children dropping out from the school? It comes to knowledge after 6 months. We can make an instant. Similarly, in health sector, a pregnant woman can be alerted through SMS about the necessary periodical checkup. In Gujarat, we have found ways to partly bridge this digital divide. Our 14,000 e-gram centers provide a basket of services to rural citizens. Our one-day governance centers give the experience of a visa office. मित्रों, ये हम लोग वनडे क्रिकेट से परिचित है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपकी कंपनियां कभी गुजरात के इस वनडे गवर्नेंस सेंटर का भी स्टडी करें और उसको और ज्यादा अपग्रेड कैसा किया जा सकता है, उसमें आप काफी कॉन्ट्रीब्यूशन दें। और उसकी जो पद्धति है, you deposit the documents in the morning and get the certificates by evening. We are using IT for delivering value in areas like education, healthcare, public distribution system, and agriculture. The ease with which information can be published over internet allows for more transparent, democratic, and participatory process. Social media has further enhanced this. We have to bring the features and feelings of like and share in governance. Social media can be used effectively to ensure that every citizen is engaged in policy making. भाइयों बहनों, मैं अपने अनुभव से कहता हूं,
मैं सोशल मीडिया में बहुत प्रारंभ से एक्टिव हूं। मेरा इतना कनेक्ट है हिंदुस्तान के हर कोने से, और लोगों की आशा आकांक्षाओं की बात मेरे पास इतनी आसानी से पहुंचती है, और समटाइम इट टच टू माय हार्ट, इट गिव्स मी इंस्पिरेशन, मुझे दौड़ने की ताकत देता है। लोगों के लिए सोशल मीडिया क्या है मैं नहीं जानता हूं, मेरे लिए सोशल मीडिया नेटवर्क एक प्रकार से मुझे एक नई प्रेरणा, नई ताकत और नया मार्गदर्शन सामान्य मानवी से मिल जाता है। यही चीजें जो आपके द्वारा बनाई हुई है, हम सामान्य मानवी भव्य भारत, दिव्य भारत बनाने के लिए उसके साथ कैसे जुड़े, हम उसमें कैसे रोल मिल करके प्ले करें, ये अगर हम करते हैं तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं। That he duly heard and responded to. NASSCOM and the Indian IT industry have taken some leaps which are noteworthy. A recent example is the Green IT initiative. So far, software and internet had been limited to people. When it reaches to things and activities, the digital divide will truly go away. The IT industry will flourish. Your market will expand. Our country will progress. Friends, today, security has become an equally important issue. Those who do not know IT do not know its security hazards. But those who know, they know that cybersecurity is a very important matter. We are living in a time where wars will be fought in the cyberspace. Your pocket will be picked through cyber mediums. Your homes may be broken in through the same. We have to work on this. Our cities, roads, societies and banks can be equipped with cheaper and higher resolution CCTV cameras. This will be yet another way to bridge the digital divide and take IT to the people. Some of your questions relate to manufacturing in electronics. This is very important. Already, our electronics imports are a big share in the import basket. In a few years from now, it is estimated that their import bill will become bigger than even oil. The hunger for electronic goods is going up. Thus, you can understand the challenge. We must focus on manufacturing. We have to particularly hurry up on manufacturing in strategic sectors like defense. We cannot afford to keep importing for all our needs. Friends, to conclude, I would like to say that I am personally a great advocate of technology. I know that IT can and will transform our lives. It is an inevitable force in the modern world. The sooner we adopt it, the better. The sooner we deploy it, the better. The sooner we master it, the better. और भाइयों बहनों, पहले के ज़माने में देशों के तनाव और संघर्ष के सामने कहा जाता था कि उस देश के पास ये आर्मी है, वो आर्मी है, 50 प्रकार के विषय आते हैं। मैं सब बोलूँगा नहीं वरना विवाद खड़ा होगा। लेकिन आर्मी के भिन्न भिन्न फॉर्म माने जाते थे और दुनिया में वो अपना अपना पैर पसारते थे। भाइयों बहनों, आप मान करके चलिए, राष्ट्र रक्षा के लिए भी जिस प्रकार से सेना का एक रोल बना है, वैसा ही साइबर वॉर के युग में आईटी प्रोफेशन वह भी एक राष्ट्र रक्षा की नई आर्मी का रूप लेने वाला है। आप जैसा एक सैनिक देश की रक्षा करता है, वैसे ही आईटी प्रोफेशनल देश की रक्षा के काम आने वाला है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि विश्व कैसे बदलने वाला है। आप इस क्षेत्र में हैं, आप इसकी हर बारीकी को जानते हैं, लेकिन मैं उसके एक उस फियर को देख सकता हूं जिसका मुझे अंदाज है। और हम सबको समय न बिताते हुए इस क्षेत्र की चिंता करनी होगी। और इसलिए मुझे विश्वास है
कि सिल्वर जुबली के समय पर नेस्कॉम का ये समारोह, मैंने जैसे पहले कहा कि 7-8 साल के बाद भारत जब डायमंड जुबली मनाएगा, उस समय हम एक बदले हुए देश को देखने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक महान उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। वंस अगेन आई विश यू द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Honorable Mr. Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat, on behalf of NASSCOM, the Executive Council, and all the delegates who are present here, it's my pleasure to really convey our heartfelt thanks and gratitude to you for having shared with us your vision of India and how technology can really play a key role in driving India of tomorrow. Sir, your vision of I+I, getting to India tomorrow, is simple, impactful, and extremely powerful. I can assure you on behalf of all of us present here, it certainly instills in us a sense of responsibility and clearly a motivation to deliver on that vision. Sir, at NASSCOM, we have certainly been deeply committed to ensure that technology is really used as a means to bring in better services to citizens, improve governance and transparency, and we'll continue to work on key initiatives which you have articulated. We already have a program called the National Digital Literacy Mission, which primarily addresses reducing the digital divide, and we've already touched close to about 2 million people, like you articulated, really teaching them how to really use digital technologies. Sir, on behalf of all of us here, I can assure you, you did bring in a very relevant point. By 2022, when we reach the Diamond Jubilee year, we should be a country which the whole world admires. This industry, sir, has been a very impatient industry. We can assure you we'll try and reach the goal by 2020. And once again, thank you very much for having spent the time. And I think Mr. Modi deserves a standing applause for his wonderful vision. Thank you, Natarajan ji. Thank you. Thanks a lot.